हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फोर्थ वीक ऑफ जनवरी के। So friends, we have an app by the name Carriers Cloud, which you can go and download through the Play Store. Once you have downloaded and logged in through your Gmail ID, you will be transferred to this page. And you can see here various all courses and various other sections provided to us. The courses that are provided by our team are very helpful and they will be very useful in your preparation. In the courses that we provide, we give you daily current affairs, weekly current affairs and monthly current affairs. In daily current affairs, we will be providing you with multiple quiz of 20 questions daily. Then we'll be giving you the daily current affairs content also. Similarly for weekly, we will providing you 50 questions of quiz on weekly basis, as well as all the important current affairs of that week will be given to you in an ebook. Similarly for monthly basis. Apart from this, we'll be providing you with banking awareness and all the banking relating exams. So don't worry, your preparation is in our hands. We'll be providing you with the best content. Apart from this, then you should know we covered topic wise. Important daily topic wise or the monthly topic wise are covered in our course. We'll give you 20 types of such PDFs that will cover apps and web portals, important days, books and authors, national affairs, international affairs, sports, awards, applications and web portals, and defense sector. All the topics that you see of general studies are basically covered here. As you saw, we provide current affairs in English, Hindi, banking awareness, exam PDF, special current affairs, topic wise current affairs are provided to you, state current affairs, then topic wise quizzes are provided to you. There is another section in special current affairs, that is learn from picture, and we have named this infographics. Infographics are your interactive PDFs that you can interact with. They are highly informative. I highly suggest you to go and check these out because they will be helping you to learn things in an interactive way. So do check them out. They will be very valuable to you. These are very important, so you should be able to revise them from using our course. All you have to do is to purchase our course. You can use code Vikas10, that will be giving you an additional 10% discount on the purchase you make. So it is a bumper offer. All you have to do is go and download our app and check our courses. So friends, we'll start with the session. तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फोर्थ वीक ऑफ जनवरी के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स डिस्कस करेंगे, फिर आपका एमसीक्यू, फिर वन लाइनर्स, फिर एमसीक्यू, मतलब मिक्स मैच रहेगा। ये सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, तो मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ, नोट डाउन ज़रूर करके चलना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक ग्रैंड होलोग्राम स्टैचू इंस्टॉल किया गया इंडिया गेट पे। इंपॉर्टेंट, किनका? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरला को अपना पहला साइंटिफिक बर्ड एटलस मिला। काफी इंपॉर्टेंट। मनसुख मांडविया, इन्होंने अभी रिसेंटली CGHS की वेबसाइट एज वेल एज एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। फिर हम बात करेंगे ग्रामा1 की। ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोग्राम है जो कि कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। ग्रामा1 किन के द्वारा लॉन्च किया गया? कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको 14th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। कहाँ का? राजस्थान का। इंपॉर्टेंट, 14 टाइगर रिजर्व। अगर मैं टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करूं, ये कब आया था? 1973 में। फिर इंडिया का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहां पे स्टैब्लिश किया गया? थिसूर, केरला में। मैं फिर से बता रहा हूं, सिटी का नाम क्या है? थिसूर, और कहां पे? केरला में। इंडिया का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर। नेक्स्ट पे आइए, कर्नाटका ने अभी लॉन्च किया पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव टू ट्रेन डॉक्टर्स इन मेंटल हेल्थ केयर। कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव मेंटल हेल्थ केयर से रिलेटेड टू ट्रेन डॉक्टर्स। नेक्स्ट, साउथ मोबंग, इनको अपॉइंट किया गया मिजोरम का फर्स्ट, या फिर साउथ मोबंग ये पहली ODF प्लस विलेज मिली। अगर आप कहेंगे ODF क्या होता है? ODF होता है ओपन डेसिफिट फ्री, मतलब आप खुले में शौच ना करके अपने प्रॉपर घर में या टॉयलेट में शौच करें। तो मिजोरम पहली ODF प्लस विलेज बनी, और कौन सी? साउथ मोबंग। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अप्रूव किया क्रिएशन ऑफ 13 मोर डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन पूछेगा कि 13 नई डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट के द्वारा बनाई जा रही हैं? आंध्र प्रदेश के द्वारा। इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पे स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है? गुरुग्राम, हरियाणा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है। फिर लोकसभा सेक्रेटरीट के द्वारा एक नई एप्लीकेशन डिजिटल संसद एप्लीकेशन लॉन्च की गई टू मेक लाइव प्रोसीडिंग्स एसेसिबल। ठीक है, डिजिटल संसद ऐप। फिर हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने होस्ट किया फर्स्ट
इंडिया सेंट्रल एशिया समिट 2022 इंपॉर्टेंट, किन्होंने होस्ट किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा होस्ट किया गया इंडिया का या पहला फर्स्ट सेंट्रल एशिया समिट 2022। फिर हम बात करेंगे इंडिया विल कन्वर्ट 150 विलेजेस इनटू विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस इजराइल की हेल्प से। इंडिया को हेल्प कर रहा है इजराइल टू कन्वर्ट 150 विलेजेस इनटू विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, फिर इजराइल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि अभी रिसेंटली किस कंट्री ने लॉन्च किया एक कमेमोरेटिव लोगो। 30th एनिवर्सरी कंप्लीट हो गई डिप्लोमेटिक टाइज की इंडिया के साथ। किस कंट्री की? मैंने अभी क्या बात की? इजराइल की। इजराइल ने एक कमेमोरेटिव स्टैम्प लॉन्च किया है 30 साल एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया के साथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे जनवरी 2022 में किसने रिलीज किया $300 बिलियन का सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स बाय डैश 2026 तक इसको लॉन्च करने की बात की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये विजन या डॉक्यूमेंट लॉन्च करा गया, जिसमें हम $300 बिलियन का लागत लगा के या खर्चा करके हम इस सेक्टर को डेवलप करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन 3। नेक्स्ट, इन विच सिटी ऑफ केरला, इन केरला की किस सिटी में, मैंने बात की थी ना कि सिटी याद रखना, थिसूर। केरला की थिसूर सिटी में पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया जाएगा। हाईली इंपॉर्टेंट, पहले तो ये याद रखना। ठीक है, डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला एंड सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, इसको डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला प्लस सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी जो कि केरला में है, इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर डेवलप करने की बात की जा रही है। और कहां पर? थिसूर, केरला में। नेक्स्ट, एज पर द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात की जा रही है। पूछा जा रहा है इंडिया की क्या रैंक रहेगी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, तो इंडिया की रैंक रहेगी 85th। फिर पूछा जाएगा कि टॉप किसने किया, फर्स्ट पोजीशन किसकी रही, तो वो है आपकी डेनमार्क की फर्स्ट पोजीशन, उसके बाद फिनलैंड, फिर न्यूजीलैंड। हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स डिस्कस कर लेते हैं। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे, थीम क्या रहेगी? मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। 25 को ही नेशनल टूरिज्म डे, थीम रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। 25 को ही हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क करना। फिर 26 जनवरी को हमने 73वां रिपब्लिक डे ऑब्जर्व किया, 73rd रिपब्लिक डे ऑब्जर्व किया था, ये इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, इस साल हम 76th इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व करेंगे, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। 26 जनवरी को ही इंटरनेशनल कस्टम्स डे ऑब्जर्व किया गया, जिसकी थीम रही स्केलिंग अप कस्टम्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाय एम्ब्रेसिंग अ डाटा कल्चर एंड बिल्डिंग अ डाटा इकोसिस्टम। 27 को इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे विद द थीम मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस। 28 को डाटा प्राइवेसी डे। फिर 30 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्टर्स डे या फिर शहीद दिवस 30 जनवरी को। 30 जनवरी को ही वर्ल्ड लेप्रेसी डे और 30 जनवरी को ही वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, जिसकी थीम रहेगी अचीविंग हेल्थ इक्विटी टू एंड द नेग्लेक्ट ऑफ पॉवर्टी रिलेटेड डिजीज। तो जिनको मैंने स्टार लगा है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखना। मूविंग ऑन, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया है इजी पे डेबिट कार्ड इन अ फिटनेस वॉच इन पार्टनरशिप विद हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म गोकी। गोकी के साथ किस बैंक ने टाई अप किया टू लॉन्च अ फिटनेस वॉच जो कि आपका एनेबल होगा डेबिट कार्ड से, मतलब वो आपका एक इजी पे डेबिट कार्ड है, फिटनेस वॉच के साथ ही आप पेमेंट कर पाएंगे। पूछा जा रहा है किन के द्वारा ये लॉन्च किया गया, ये किस बैंक के साथ मिलके? गोकी के द्वारा ये फिटनेस बैंड तो बनाया गोकी ने। पूछा जा रहा है किस बैंक ने टाई अप किया ये लॉन्च करने के लिए, तो क्या रहेगा बैंक का नाम, बताओ? बैंक का नाम रहेगा आपका सिटी यूनियन बैंक। और याद रखना सिटी यूनियन बैंक ही ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया का। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आइए। विच कंपनी रिसेंटली पार्टनर्ड विद पेंसिल्टन टू लॉन्च अ पेंसिल कार्ड, इंडिया का पहला डेबिट कार्ड विद नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की फैसिलिटी के साथ ये पहला कार्ड होगा जो टीन्स को स्पेसिफिक करके बनाया गया या टीन्स को नजर में रखते हुए बनाया गया होगा। तो किसके द्वारा बनाया गया, किस कंपनी ने टाई अप किया, ये पूछा जा रहा है आपके साथ। तो ये ट्रांसकॉर्प के द्वारा टाई अप किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। किस कंपनी ने बिल्ड किया वर्ल्ड का फास्टेस्ट, सबसे तेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर, जिसको एआई रिसर्च सुपर क्लस्टर भी बोला गया, RSC सुपर क्लस्टर। ठीक है,
क्या नाम रहेगा उस कंपनी का? वो है मेटा। मेटा का पहले क्या कहते थे? फेसबुक। अभी याद रखना, गूगल ने टाई अप किया है इंडिया के साथ $1 बिलियन का। किस फील्ड में? आइए देखते हैं आगे। अभी थीम क्या रहेगी? 12वीं नेशनल वोटर्स डे की। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, क्या थीम थी 12वें नेशनल वोटर्स डे की? क्या थीम रहेगी? वो थी आपकी मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एसेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हमने देखा कि हमें पता है कि जो हमारी वोटिंग एज है ना, वो 21 से 18 साल कर दी गई थी। हमें पता है 18 साल का बच्चा वोटिंग कर सकता है। ये किस अमेंडमेंट एक्ट में आया? 61st अमेंडमेंट एक्ट में आया। अगर ये पूछ ले कि किस सन में ये चेंज हुआ था, तो 1989 में, ठीक है, जो 61st अमेंडमेंट एक्ट था। नेक्स्ट पे आते हैं। फिर पूछा जा रहा है आपसे, उस मैरीटाइम एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कि रिसेंटली इंडियन नेवी के द्वारा अरेबियन सी में कंडक्ट कराई गई। देखो, अरेबियन सी में कंडक्ट कराई गई, इंडियन नेवी ने कंडक्ट कराई, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स, इन सब का पार्टिसिपेशन देखने को मिला, लेकिन कंडक्ट कराई गई इंडियन नेवी के द्वारा। क्या नाम था इसका? इस एक्सरसाइज का नाम रहेगा पश्चिम लहर। 2022 मतलब 2000 संघ में कराया, 2022 में कराया गया। मूविंग ऑन। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिसने एक एमओयू साइन किया इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के साथ, एंड फॉर ह्यूमन ग्लोबल फॉर एडवांसमेंट इन ग्लोबल ह्यूमन रिसर्च, मतलब ह्यूमन हेल्थ के ऊपर रिसर्च करने के लिए CSIR ने, याद रखना फ्रांस की कंपनी है इंस्टीट्यूट पैस्चर, इसके साथ टाई अप किया ताकि ह्यूमन हेल्थ पे फर्दर रिसर्च किया जा सके। फ्रांस की कंपनी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर इंटरनेशनल न्यूज़ पे आते हैं। सबसे पहले अभी हमने क्या पढ़ा कि इंडिया की CSIR और फ्रांस की इंस्टीट्यूट पैस्चर ने टाई अप किया ह्यूमन हेल्थ में। सिमिलरली इंडिया और फ्रांस ने टाई अप किया, कंट्रीज ने टाई अप किया एक MOU, स्कोप फॉर कॉर्पोरेशन इन हेल्थ रिसर्च। फिर प्रेसिडेंट ऑफ आर्मेनिया आर्मेन शरीशकिशन, इन्होंने रिजाइन कर दिया। इंडिया और इजराइल ने एक कॉमेमोरेटिव लोग, अभी हमने देखा ना कि 30 साल की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज, इंडिया एंड इजराइल ने क्या लॉन्च किया था? एक कमेमोरेटिव लोगो। ऑलराइट, 2021 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही? 85th। फर्स्ट कौन रहा? डेनमार्क। फिर इंडिया एमर्ज एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कुकुम्बर, खीरे का और गर्गिस्किन का, इनका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर निकला इंडिया। नेक्स्ट, इंडिया एंड UAE सेट अप $150 मिलियन वर्थ ऑफ वेंचर कैपिटल टू बूस्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम। इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरेट्स ने $150 मिलियन का वेंचर कैपिटल इस्टेब्लिश किया ताकि स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट मिल सके। अगर मैं स्टार्टअप की बात करूं तो सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स किस कंट्री के पास हैं? USA, फिर चाइना, फिर आ जाता है इंडिया। तो इंडिया 3rd नंबर पे आता है विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स। अब यूनिकॉर्न्स होते क्या हैं? यूनिकॉर्न्स होते हैं जिन कंपनियों की या जिन स्टार्टअप की मार्केट कैप $1 बिलियन से ऊपर है। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेम द डीकमीशन्ड इंडियन नेवल शिप। उस इंडियन नेवल शिप का नाम बताओ जिसको रिसेंटली दीव सरकार को हैंडओवर कर दिया था और दीव सरकार ने उसका म्यूजियम बना दिया है। तो क्या नाम रहेगा उस इंडियन नेवल शिप का? वो है INS खुखरी। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पे आइए। उस स्मॉल फाइनेंस का नाम बताओ जिसने रिसेंटली अमालगेटेड, मतलब मिल गया, पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉर्पोरेटिव बैंक से। पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉर्पोरेटिव बैंक से मिलने वाला वो स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है? उसका नाम पूछा गया है, वो है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। हु ऑथर्ड बुक का नाम रहेगा अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इस बुक को ऑथर करने वाले व्यक्ति कौन? रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट का नाम बताइए जिसने रिसेंटली 13 नई डिस्ट्रिक्ट्स डेवलप की। मैंने अभी क्या बताया था? स्टेट का नाम पूछा जाएगा, आंध्र प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स आर इन पद्मा अवार्ड। इससे पहले इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा होता है? भारत रत्न। अगर अब मैं पूछूं भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किस व्यक्ति को, किस फर्स्ट फॉरेनर या फर्स्ट इंडियन जिनको सम्मानित किया गया भूटान के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, कौन रहेंगे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इस अवार्ड का, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम क्या है? नगडक पेलगी खोरगो। ठीक है, ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये पहले इंडियन और फर्स्ट फॉरेनर जिनको ये भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर अगर मैं पूछ लूं किस फील्ड में पद्मा अवार्ड दिए जाते हैं, तो इन सभी फील्ड्स में पद्मा अवार्ड दिए जाते हैं। इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पे आइए।
विच इज द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया? पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया का कौन सा है, ये बताओ। फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया, क्या रहेगा नाम? फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया। इजी क्वेश्चन है ये तो, कमेंट करके बताई दो। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। और कब स्टैब्लिश हुआ था? 2016 में स्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट पे आइए, अभी रिसेंटली किस कंट्री ने साइन किया $375 मिलियन की डील ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ टू प्रोक्योर ब्रह्मोस मिसाइल? ये पहली कंट्री बनी जो कि ब्रह्मोस मिसाइल प्रोक्योर करेगी इंडिया से, वो है फिलीपींस। अगर मैं ब्रह्मोस की बात करूं, ये किन दो कंट्रीज के जॉइंट वेंचर है? इंडिया एंड रशिया। ठीक है, अगर चलो एक होमवर्क देता हूं, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मोस और एमओएस, ये आरएस, तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है जो कि इंडिया की है। रशिया की कौन सी रिवर से ये मॉस नाम लिया गया है, इसको कमेंट करो। ये मैं पढ़ा चुका हूं, अगर आप ध्यान रखते हैं, नोट्स बनाते हैं तो इजीली आप आंसर कर देंगे। इन विच सिटी इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पे स्टैब्लिश किए जाने की बात है? गुरुग्राम, हरियाणा में। फिर याद रखना, अगर पूछा जाए कि वो कौन सी स्टेट है जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स में टॉप किया, उत्तर प्रदेश। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम, हरियाणा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101st मेंबर कौन बना जिसने ज्वाइन किया? यूएसए। फिर मुझे बता दो, इंडिया का किस कंट्री के साथ टाई अप रहेगा जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया? ठीक है, और किस सन में लॉन्च किया? चलो किस सन में लॉन्च किया ये भी आप ही बता दो, होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट पे आइए, विच कंपनी रिसेंटली पार्टनर्ड विद एग्रीटेक? देखो, एक होता है फिनटेक, एक होता है फिनटेक। फिनटेक होता है फाइनेंस और टेक्नोलॉजी। अब एग्रीटेक बोल रहा है, मतलब एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी का एक स्टार्टअप था फार्म्स का नाम का, जिन्होंने टू ऑफर डिजिटल इंश्योरेंस सॉल्यूशंस टू फार्मर्स को डिजिटल इंश्योरेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए फार्म्स के द्वारा किस कंपनी के साथ टाई अप किया गया? वो रहेगी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिसने अभी टाई अप किया एनपीसीआई के साथ ताकि दूसरी कंट्रीज में यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकें, रियल टाइम पेमेंट हो सके। किस कंपनी ने किया? टेरापे ने। ठीक है, इंडिया से आप बैठे बैठे दूसरी कंट्रीज में पेमेंट कर सकें, इसलिए एनपीसीआई के साथ टेरापे ने टाई अप किया टू यूज यूपीआई फॉर द पेमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। नेक्स्ट, फिर वन लाइनर्स पे आइए। आरबीआई, इन्होंने ऑफर किया ओवरनाइट वीआरआर ऑक्शन ऑफ वर्थ 75,000 करोड़ रुपीस। लैंडिंग कार्ड ने पार्टनर किया बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ टू ऑफर एमएसएमई लोन्स। नेक्स्ट, मैक्स लाइफ ने पार्टनर किया पॉलिसी बाजार के साथ टू ऑफर इंश्योरेंस कवर फॉर होम मेकर्स। होम मेकर कौन होता है? जो आपकी हाउसवाइफ होती हैं, बेसिकली जो घर पे रहते हैं। नेक्स्ट, टेरापे ने पार्टनर किया एनपीसीआई इंटरनेशनल के साथ टू बूस्ट कैशलेस ट्रांजैक्शन यूजिंग यूपीआई। SBI listed the maiden issue of $300 million फॉर्मोसा बॉन्ड ऑन इंडिया INX। अगर पूछ ले फॉर्मोसा बॉन्ड के बारे में तो किस कंट्री, वो कौन सी पहली एंटिटी बनी या जिसको फॉर्मोसा बॉन्ड को इशू किया गया? वो है SBI। ठीक है, और फॉर्मोसा बॉन्ड को यूज कौन करता है? ताइवान। ये भी याद रखना। फिर गूगल ने $1 बिलियन किस में इन्वेस्ट किया? भारतीय एयरटेल में इन्वेस्ट किया। मतलब इंडिया को डिजिटाइज करने के लिए $1 बिलियन का सहयोग गूगल के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट, पेटीएम मनी ने लॉन्च किया इंटेलिजेंट मैसेंजर जिसका नाम रहेगा पॉप्स, और ये क्या है? इन्वेस्टमेंट एंड ट्रैक मार्केट। मतलब पेटीएम मनी की एप्लीकेशन में आप पॉप्स यूज कर सकते हैं, एक इंटेलिजेंट मैसेंजर जो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट और ट्रैक मार्केट, आपकी मार्केट को ट्रैक करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट पे आइए, नेम द कंपनी जिसने रिसेंटली पॉप लॉन्च किया। अभी हमने क्या पढ़ा? पेटीएम मनी के द्वारा लॉन्च किया गया। वेरी गुड। नेक्स्ट पे आइए, गूगल ने किस में इन्वेस्ट किया $1 बिलियन टू डेवलप इंडियाज डिजिटल इकोसिस्टम? भारतीय एयरटेल में उन्होंने इन्वेस्ट किया। काफी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन। देखिए, ये हेल्प होती है अगर आप वन लाइनर्स ध्यान से पढ़ लें तो क्वेश्चन देखते ही आप आंसर बता देंगे। विच कंपनी रिसेंटली रीनेम इट्स लिस्टेड होल्डिंग कंपनी एज कैपिटल ए बरहार्ड? किस कंपनी का नाम कर दिया? एयर एशिया का। ठीक है, विच कंपनी रीनेम्ड इट्स लिस्टेड होल्डिंग कंपनी एज कैपिटल ए बरहार्ड? कौन सी? एयर एशिया। मार्क करना, काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटीज हु रिसेंटली नेम्ड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किन को बनाया गया? ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। बताइए नाम, क्या नाम रहेगा? पुष्प कुमार जोशी। अगर अब मैं आपसे पूछ लूं पुष्प कुमार जोशी किन को रिप्लेस करेंगे, तो ये रिप्लेस करेंगे मुकेश
कुमार सुराना को। ठीक है, पुष्प कुमार जोशी किनको रिप्लेस करेंगे? मुकेश कुमार सुराना को। नेक्स्ट, किनको, कौन हाईएस्ट रन स्कोरर इन ओडीआई फॉर्मेट? ओडीआई होता है वनडे, ठीक है, वनडे इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट जो आपकी 50-50 होता है। ठीक है, अगर आप पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट रन स्कोरर इन ओडीआई कौन बन गए, वो बने विराट कोहली। ठीक है, अब ये कैप्टन नहीं है, इन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। तो याद रखना, इन्होंने सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और ही इज फॉलोड बाय महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, इनके बाद जो सबसे हाईएस्ट स्कोर आ जाते हैं फिर वो महेंद्र सिंह धोनी आ जाते हैं, क्योंकि करंटली अभी महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे हैं, सचिन तो रिटायर हो चुके हैं। कमिंग बैक, आप याद ही रखना किन्होंने रिकॉर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर बने, वो बने विराट कोहली। फिर अगर बात करें ऋषभ पंत की, ऋषभ पंत भी क्रिकेटर हैं, तो इनको उत्तराखंड गवर्नमेंट का उत्तराखंड का नहीं, हाँ उत्तराखंड का, ऋषभ पंत को उत्तराखंड का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ताकि वहां के यूथ में स्पोर्ट्स का अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे विराट कोहली। नेक्स्ट पे आइए, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। नीरज चोपड़ा, इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया गुड डॉट का। इंपॉर्टेंट, नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लाए थे, जेवलिन थ्रो में लाए थे, टोक्यो ओलंपिक गेम्स में लाए थे। 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे सेलिब्रेट करने लग गए हैं। नेक्स्ट पे आइए, पुष्प कुमार जोशी, ये नए चेयरमैन बन गए हैं एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HPCL। बद्रीनाथ श्रीनिवासन, इनको अपॉइंट किया गया MD ऑफ विप्रो फॉर साउथ ईस्ट एशिया। फिर वी अनंतना नागेश्वरन, इनको अपॉइंट किया गया न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट, हमारे नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इंडिया के कौन रहेंगे? अनंता नागेश्वरन। नेक्स्ट पे आइए, अरुण कुमार पुरवार, इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ IIFL फाइनेंस। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा LIC चेयरमैन MR कुमार, LIC के चेयरमैन MR कुमार का टाइम पीरियड या टेन्योर कितने टाइम से इंक्रीज कर दिया गया? 1 साल से इंक्रीज कर दिया गया। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली हमने एक सेलिब्रेट किया फेस्टिवल सरोक नाम का, सरोक फेस्टिवल। पूछा जा रहा है ये सरोक फेस्टिवल किस स्टेट में ऑब्जर्व किया जाता है, बताइए जरा। सरोक फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में। लॉसोंग फेस्टिवल कहां ऑब्जर्व किया जाता है, बताइए जरा, कमेंट करिए। सिक्किम में। लोसार फेस्टिवल कहां ऑब्जर्व किया जाता है, बताइए जरा। लद्दाख में लोसार फेस्टिवल। ठीक है, चल नेक्स्ट पे आते हैं। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको फोर्ट टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया किस स्टेट का? राजस्थान का फोर्ट टाइगर रिजर्व कौन सा बना? विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके जरूर चलिएगा, पूछे जाने के पूरे चांस रहेंगे। अभी रिसेंटली यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में किसको इंक्लूड किया गया? इससे पहले याद रखना, इंटेंजिबल होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में पहले दुर्गा पूजा को ऐड किया गया था, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। एंड अभी जो इसको ऐड किया गया वो है वाइकिंग एरा का वुडन सेल बोट्स को। ठीक है, यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। नेक्स्ट पे आइए, 150 इंडियन विलेजेस को आपका विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस कन्वर्ट कर दिया गया किसकी हेल्प से? हमने पहला ही क्वेश्चन था, ये पहला ही वन लाइनर था कि इजराइल की हेल्प से इंडिया की 150 विलेजेस को विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करने की बात की जा रही, और इंडिया और इजराइल ने मिलके ही अपना एक कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया 30 साल की अपने डिप्लोमेटिक टाइज को, मतलब उनके 30 साल पूरे हो गए थे डिप्लोमेटिक टाइज के, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। फिलीपींस क्या बना? पहला ब्रह्मोस मिसाइल्स का प्रोक्योर, मतलब इंडिया से परचेज करेगा ब्रह्मोस मिसाइल, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आइए, अभी रिसेंटली किस बैंक ने लिस्ट किया इट्स फर्स्ट 300 मिलियन फार्मोसा बॉन्ड्स में ऑन इंडिया INX? मैंने भी बताया था आपको, क्या रहेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो पहला एंटिटी है जो कि पहला एंटिटी है जिसने फार्मोसा बॉन्ड्स को लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड। बुक का नाम लास्ट अमंग इक्वल्स, पावर, कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेज, किसके द्वारा ऑथर की गई? MR शरण के द्वारा। फिर दूसरी बुक का नाम है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किन के द्वारा ऑथर की गई? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। नेक्स्ट, इसको पहले मार्क करो।
नेक्स्ट, मीनाक्षी लेखी ने अभी एक पिक्टोरियल कॉमिक बुक रिलीज किया, मतलब उसमें पिक्चर्स हैं सिर्फ। बुक का नाम रहेगा इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज। किनके द्वारा रिलीज की गई? मीनाक्षी लेखी के द्वारा। सुभाष गर्ग, इन्होंने एक बुक को ऑथर किया जिसका नाम है द $10 ट्रिलियन ड्रीम। इंपॉर्टेंट, $10 ट्रिलियन ड्रीम बुक के द्वारा किसके द्वारा ऑथर की गई? सुभाष गर्ग। फिर आ जाता है लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम, अ हिस्ट्री ऑफ आर्टिकल 21 ड्यू प्रोसेस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बुक ऑथर की गई रोहन जे आल्वा के द्वारा। एंड नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेशन खाटमा। ये ऑपरेशन खाटमा 2 लोगों के द्वारा ऑथर की गई ये बुक है, RC गंजो एंड अश्विनी भटनागर के द्वारा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आइए। फिर पूछा जा रहा है कि अभी रिसेंटली सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप न्यू बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन एट करेंसी नोट्स प्रेस, मतलब इनके द्वारा सेटअप किया गया न्यू बैंक नोट प्रिंटिंग लाइंस एट करेंसी नोट प्रेस एट कहाँ पर और बैंक नोट प्रेस एट कहाँ पर। करेंसी नोट प्रेस को इस्टेब्लिश कहाँ किया जा रहा है, मतलब कहाँ पर बनाने की बात की गई? नासिक में। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। और आपका जो बैंक नोट प्रेस है ये देवास, देवास कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ऑलराइट, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 1। नेक्स्ट पे आइए, किस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया फिक्की के साथ टू सपोर्ट 5 लाख वीमेन लेड स्मॉल बिजनेस? इनका एक कैंपेन था अंडर हैशटैग शी मीन्स बिजनेस। ये कैंपेन याद पूछ ले या ये पूछ ले किसने पार्टनर किया फिक्की के साथ, तो वो रहेगा आपका मेटा। मेटा क्या है? आपका फेसबुक का पुराना नाम, हम देख ही रहे हैं। पूछा जाए मेटावर्स, पूछा जाए आपसे मेटावर्स किन के द्वारा लॉन्च किया गया? ये भी मेटा के द्वारा या फेसबुक के द्वारा ही लॉन्च करा गया है। नेक्स्ट, मेजर जनरल YP खंडूरी, ये डायरेक्टरेट ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स है, किस स्टेट के? महाराष्ट्र के। पहली चीज। दूसरी आपको याद रखना है, इनको अवार्ड किया गया प्राइम मिनिस्टर्स बैनर एट द रिपब्लिक डे कैंप, हाईली इंपॉर्टेंट। मेजर जनरल YP खंडूरी को, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स है महाराष्ट्र के, इनको अवार्ड किया गया प्राइम मिनिस्टर्स बैनर एट द रिपब्लिक डे कैंप। नेक्स्ट, फिर अवार्ड्स पे ही बात करें तो प्रधानमंत्री कन्फर्ड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार टू 29 चिल्ड्रन। खुजांगल, खुजांगल वो बेस्ट फिल्म मूवी का अवार्ड, अगर पूछा जाए बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किसको मिला? खुजांगल को मिला। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा अवार्ड दिए गए, जिसमें अगर पूछा जाए ICC मैन ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो बाबर आजम, अगर वीमेन ICC वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो लिजली ली। और इसी में अगर ये तो थी ODI मतलब वनडे की बात, अगर मैं टेस्ट की बात करूं ICICI मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर वो बने जो रूट। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा, हमने देखा था अभी, नीरज चोपड़ा को ऑनर किया गया परम वशिष्ठ सेवा मेडल से। बहुत इंपॉर्टेंट, नीरज चोपड़ा से जो भी क्वेश्चन बने, चाहे वो ब्रांड एम्बेसडर, चाहे इनको अवार्ड दिया जा रहा है, चाहे उनसे रिलेटेड कोई और चीज़ स्टार्ट की गई, तो आपको वो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे असम स्टेट गवर्नमेंट के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का, जो जिसका नाम है असम वैभव अवार्ड। किनको सम्मानित किया गया? रतन टाटा जी से सम्मानित किया गया असम के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि है असम वैभव अवार्ड। इसके साथ ही साथ याद रखना, अगर मैं पूछूं महाराष्ट्र की कोविड-19 ड्राइव के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, वो है सलमान खान। नेक्स्ट पे आइए, who was recently awarded with the Sir Garfield Sobers Trophy for ICC Men's Cricket of the Year। ICC Men's Cricket of the Year 2021 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किन को सम्मानित की गई? शाहीन अफरीदी, ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। इनको सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित करा गया, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, Which of the following tiger reserve in India recently won the TX2 Award 2022 for doubling their tiger population? याद रखना कुछ 25 टाइगर थे इनके पास 2011 में, अब इन्होंने रफली अराउंड 75 to 80 टाइगर्स हो गए हैं, मतलब जो पॉपुलेशन है मोर देन डबल हो चुकी है, ट्रिपल के करीब हो चुकी है। पूछा जा रहा है किस टाइगर रिजर्व को ये TX2 अवार्ड 2022 के लिए सम्मानित करा गया? वो है साथियामंगलम टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका तमिलनाडु में लोकेटेड रहेगा। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ये सिर्फ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कुछ भी बोल लो, कॉर्बेट जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में। वेरी गुड। नेक्स्ट पे आइए, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? कौन थी?
अनंथा नागेश्वरम। इससे पहले आगे जाने से पहले पहले तो ये मार्क कर लेना। अब एक बार मैं पूछूं, ये रह गई ओरेंग टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व। कमलंग टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है, जल्दी बताओ। कमलंग टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, पहली चीज। फिर ओरेंग टाइगर रिजर्व असम में, पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। अगर मैं पूछ लूं डिगबोई ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी कहां पर है? असम में, डिगबोई, ये भी याद रखना। नेक्स्ट पे आइए, हम देख ही चुके हैं अनंथा नागेश्वरम, ये क्या बनी? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पे आइए, उस एप्लीकेशन का नाम बताना जो लोकसभा सेक्रेटरीट के द्वारा लॉन्च की गई टू मेक लाइव पार्लियामेंट प्रोसीडिंग एसेसिबल टू सिटीजन्स। सिटीजन्स को लाइव पार्लियामेंट प्रोसीडिंग दिखाने के लिए लोकसभा सेक्रेटरीट के द्वारा क्या एप्लीकेशन का नाम लॉन्च किया गया? पहला हमने पढ़ा था पहले, उस पर क्या था एप्लीकेशन का नाम? डिजिटल संसद, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पे आइए, अभी इन वीमेंस एशिया कप मुस्केट 2022 किसने गोल्ड मेडल जीता? देखो याद रखना, मैं इसको यहाँ क्लियर करता हूँ। वीमेंस हॉकी एशिया कप की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, वीमेंस एशिया हॉकी कप की। तो जिसने गोल्ड मेडल जीता वो कौन, और जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता वो कौन, ये बताओ। चलो यही तो पूछ रहा आपसे कि इंडिया ने किसने गोल्ड मेडल जीता और इंडिया ने क्या मेडल जीता। तो गोल्ड मेडल जीतने वाला कौन था? वो बना जापान। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाला बना इंडिया। इंडिया ने चाइना को हरा के गोल्ड ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन 4 हुआ, ठीक है। फिर बात करते हैं कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड वन लाइनर्स की। लखनऊ आईपीएल टीम का नाम लखनऊ सुपर जायंट्स कर दिया गया, पहली चीज। एशली बार्टी ये फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन बनी जिन्होंने वीमेन सिंगल चैंपियन जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन का। तो वीमेन ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप 2022 किसने जीती? एशली बार्टी ने, और ये पहली ऑस्ट्रेलियन बनी, ठीक है। आ गया एशली बार्टी ऑस्ट्रेलियन ओपन वीमेन सिंगल टाइटल। अगर मैन की बात करें तो जीता राफेल नडाल ने, ठीक है, याद रहेगा। फिर आइए वीमेन्स हॉकी एशिया कप की बात करें तो इंडिया ने चाइना को हराया ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए। फिर आ जाता है ओडिशा ओपन 2022, उन्नति हुड्डा एंड किरण जॉर्ज, इन्होंने वीमेन्स एंड मेन सिंगल टाइटल जीता। मतलब वीमेन ओडिशा ओपन टाइटल की बात करें तो उन्नति हुड्डा ने, एंड मेन सिंगल टाइटल की बात करें तो किरण जॉर्ज ने। नेक्स्ट, किस कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज यूज करता है फॉर्मोसा बॉन्ड? अभी हमने बात किया था ताइवान के द्वारा, और इंडिया की पहली एंटिटी कौन बन गई है जिसने फॉर्मोसा बॉन्ड इशू किए $300 मिलियन के कुछ, वो थी एसबीआई। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ एल्गे, क्या कहते हैं स्टडी ऑफ एल्गे को? बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक होता है स्टडी ऑफ एल्गे, एक होता है स्टडी ऑफ फंजाई। तो स्टडी ऑफ एल्गे क्या कहा जाता है आपका? फाइकोलॉजी, एल्गे की स्टडी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गे फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगाई माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ डिजीज पैथोलॉजी। पैरासिटोलॉजी होमवर्क दे देता हूं मैं आपको, इजी है, नाम बता सकते हैं, ठीक है। पैथोलॉजी होता है ओरिजिन ऑफ डिजीज, जैसे कोविड-19 ओरिजिन कैसे हुआ, कहां से आया, उसकी स्टडी पैथोलॉजी। माइकोलॉजी फंजाई, फाइकोलॉजी एल्गे, और एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट। नेक्स्ट, इंडिया इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग बाय वॉल्यूम। किस नंबर पे आता है इंडिया? वो है आपका 3rd नंबर पे, इंपॉर्टेंट। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग बाय वॉल्यूम की बात करें तो इंडिया 3rd नंबर पे आता है आपका। ऑलराइट, चलो। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।